ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مریم عزیز ہیں اور ماہر غذائیات ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مریم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہیں. سب سے پہلے تو میرا تھوڑا انٹرو سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں. یہ فوڈ سپلیمنٹس جو ہیں یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ کیا آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے, ہر شخص کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, میں اس طرح سے اس بات کو پورٹری کروں گی کہ وائٹامنس اور منرلز ہمارے لیے اچھے ہیں, لیکن ہم ان کو نا اگر غذا سے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. بٹ آج کل کا ایک ایسی چیز بن گئی ہے کیونکہ ہمارا دور بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے, ہر چیز بہت زیادہ, ہمیں ہر چیز نا بہت جلدی جلدی چاہیے. ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اس طرح چاہیے کہ بس اگر ہم ابھی کھا رہے ہیں نا تو ہمیں 1 یا 2 دن بعد ہمیں ریزلٹس ملنے چاہیے. سو اٹس لائک دیٹ کہ اگر آپ آرگینک سورسز سے, فروٹ سے, ویجیٹیبل سے چیزیں زیادہ لیں گے, وائٹامنس لیں گے, منرلز لیں گے, تو وہ ایک تو آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ویٹ مینٹیننس کا, ویٹ لاس کا, تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں بہت زیادہ دفعہ بتایا جاتا ہے یہ چیز کہ زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم ان کو آرٹیفیشل سورسز سے لے رہے ہوتے ہیں. اور آج کل آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بہت زیادہ عام ہے وائٹامن سی سپلیمنٹس, کولیجن کے سپلیمنٹس بہت زیادہ عام ہے. تو اگر ہم اس کو کوشش کریں کہ زیادہ ہم اپنے فوڈ سے لیں, ڈائٹ سے لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میں اس طرح بتاؤں گی اگر ہم نہیں لے رہے ڈائٹ سے, وہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور ہماری باڈی میں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہو گئی ہیں, پھر ہم نے سپلیمنٹس کی طرف جانا ہے. اور اگر ہم سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں تو کیا ان کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہمیں ساتھ ساتھ ملتے ہیں؟ اچھا, فرسٹ آف آل تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کو سپلیمنٹس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا تو آپ کی باڈی سائنس دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ کی باڈی سائنس اس طرح سے دیتی ہے کہ آپ کا کلر جو ہے وہ پیل ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تھکان ہونا شروع ہو جاتی ہے, چکر بہت زیادہ آتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ کوئی بھی آپ کام کریں نا آپ کو ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایک دم تھکان محسوس ہو جاتی ہے کہ اب ہم نے جی بیٹھنا ہے, بہت زیادہ تھک گئے ہیں. تو اس کو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ڈائٹ سے ٹھیک کریں. کس طرح سے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ فروٹس لیں, میٹ زیادہ کھائیں, اور میٹ میں اس طرح سے کہ ہم آرگن میٹ زیادہ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. اب آرگن میٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, آپ مٹن کا لیور لے سکتے ہیں جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں, پپرا کہتے ہیں, اور جو ہم دل کہتے ہیں جس کو, تو وہ ساری چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم وہاں سے نہیں لے رہے, فار ایگزامپل ہمارا HB بہت زیادہ لو ہے, اگر ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, CBC ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں, تو اگر اس میں بہت زیادہ لو آ رہا ہے اس طرح کا کہ ڈراسٹکلی آپ جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے, تو پھر سپلیمنٹس کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں. اس طرح سے کہ ہم نے 2 منتھس کے لیے 3 منتھس کے لیے ایک پورا کورس کمپلیٹ کیا, دین ول ٹرائی ٹو کم بیک ٹو دا فوڈس, اور فوڈ گروپ کے تھرو جو ہے نا وہ ہم اپنی ڈائٹ کے تھرو اپنا جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, خواتین میں سب سے زیادہ کس چیز کی کمی آپ دیکھتی ہیں جس خطے میں, جس موسم میں, جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ خواتین سے آغاز کر لیتے ہیں کہ خواتین میں کون سی ایسی غذائی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو پاتی اور سب سے زیادہ کمی آپ دیکھتی ہیں؟ خواتین میں خاص طور پہ جو موسٹ آف دی ڈاکٹرز اینڈ نیوٹریشنسٹ کی ریسرچز کہتی ہیں تو وائٹامن ڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہے, کیونکہ ہر دوسرا جو گھر کا بندہ ہے اس کے ہڈیوں میں درد ہے, اس کی کمر میں درد ہے, اس کے جوڑوں میں درد ہے. دیٹ از بیکاز کہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے. سب سے زیادہ ڈیفیشنسی رپورٹ ہوتی ہے خواتین میں, اسپیشلی وائٹامن ڈی کو ہم لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں سورج کے ساتھ, شعاؤں کے ساتھ. ہمارے ہاں تو تقریباً کوئی سارا سال ہی, شاید ہی چند دن ہوتے ہیں جب ہمیں سورج نظر نہیں آتا. ایسی کڑاکے کی شعائیں ہیں, دھوپ ہے, اس کے باوجود ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے؟ اچھا, بیسیکلی نا جو وائٹامن ڈی ہمیں سن کے تھرو ملتا ہے, سورج کے تھرو, اس کی بھی نا کچھ ٹائمنگ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن ہی اگر دھوپ کے اندر بیٹھے رہیں گے تو وائٹامن ڈی جو ہے وہ بیسیکلی, یا تو صبح صبح جو ہے وہ 9 بجے سے 10 بجے تک کا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے کنورٹ ہونے کے لیے باڈی میں وائٹامن ڈی. اس کے علاوہ جو شام ہوتی ہے, سو 3 بجے 4 بجے جو مغرب سے پہلے کا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, عصر کے بعد کا, تو تب جو ہے وہ وائٹامن ڈی بہت اچھا ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ بزی لائف سٹائل ہے, اتنا بزی اسکیڈول ہے کہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بچوں سے, گھر کے کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ جا کے دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اور جب ان کو ٹائم ملتا ہے, جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور ہسبینڈ وغیرہ کام پہ چلے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ 1-2 بجے کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ کڑاکے والی دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے. تو اور مریم اس وقت جب ہم کوئی کینو, کوئی سلاد کی چیزیں, کوئی کھیرے, کوئی مولی باسکٹ سجا کے دھوپ میں بیٹھ
बैठ भी जाएं तो मेरा ख्याल वो धूप जो है वो सिर्फ सेक लगा रही होती है, ऐसा ही है, आपको कुछ भी दे नहीं रही होती। और दूसरी बात ये है कि फिर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी होती है ना कि धूप में नहीं बैठना, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम काले हो जाएंगे, तो वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करते कि दे नीड सनस्क्रीन टू सिट इन द सन। तो उससे ये है कि जब आप सन में ज़्यादा देर बैठते हैं तो फिर एजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि जो विटामिन डी है ना, सप्लीमेंट्स के थ्रू हम उसको लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ द ओनली विटामिन, क्योंकि रिसर्चेज आई हैं 23-24 की, जो अभी लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी फूड्स हैं उनसे हमें 0% विटामिन डी मिलता है। इसका मतलब फूड से हमारी विटामिन की नीड पूरी नहीं हो रही बिकॉज जो दूध हम लोग पी रहे हैं और जितनी भी चीजें हैं उनमें विटामिन डी हमें नहीं मिलता। सो सन इज द ओनली सोर्स जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, और वो भी हम मैक्सिमम कितना ही ले लेंगे उससे। सो दैट इज द ओनली थिंग जो कि हमें विटामिन डी जो है, फिर वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। जब आप अपना D3 का टेस्ट करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा लो आता है, देन डॉक्टर्स रिकमेंड यू कि आप जो है वो सप्लीमेंट्स के थ्रू उसको यूज करें। अब मुझे ये बताइए, खवातीन की मैंने बात कर ली है कि विटामिन डी सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है, मर्द हज़रात में कौन से विटामिन, कौन सी ग़िज़ाई ज़रूरत आपको बहुत कम रिपोर्ट होती है? अच्छा, जो मर्द हज़रात हैं उनमें जो है वो विटामिन सी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो उनके होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम नहीं कर रहे होते वो। और आपको पता है कि जो मर्द वगैरह हैं वो ज़्यादातर थोड़ा गोश्त के शौकीन होते हैं, दे लाइक टू ईट मीट एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो उसकी वजह से ना उनकी फ्रूट्स की तरफ या वेजिटेबल्स की तरफ ज़्यादा वो नहीं कोशिश करते, तो उसकी वजह से विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे जो विटामिन सी है वो हमारा कोलेजन बूस्ट करने में, हमारी स्किन को फ्रेश रखने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उनमें जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई है कि विटामिन सी की कमी बहुत ज़्यादा। बच्चों की भी बताइए हमें। बच्चों की जो है ना, दैट इज़ विटामिन ए। बच्चों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा जो है वो डेफिशिएंसी पाई जाती है विटामिन ए की बच्चों में ना। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या करेगी बॉडी में अगर नहीं होगा तो? हाँ, विटामिन ए जो है वो बेसिकली बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। अक्सर बच्चों के जो है वो पाँव टेढ़े हो जाते हैं, जिसको आम ज़बान में बोलते हैं हम लोग उनको जो है वो न्यूट्रिशन की ज़बान में या डॉक्टर की ज़बान में उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आम है विटामिन ए, बिकॉज बच्चों को जो है वो ज़्यादातर फ्रूट से या विटामिन जो है ना वो विटामिन ए मिलता है वेजिटेबल से, और जितनी भी लाल रंग की या ऑरेंज कलर की जो वेजिटेबल्स हैं उससे हमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा मिलता है। यानी आप गाजर के जूस का सीजन था, गाजर खाएं, चुकंदर बहुत ज़्यादा था, इसके अलावा ऑरेंज में बहुत ज़्यादा होता है। और जो है जितनी भी कैप्सिकम है, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, मिर्चें हो गई, तो वो सारी जितनी भी है ना उनमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। और अक्सर जो है वो माएँ ये भी बोलती हैं कि दलिया या साबूदाना बना के दें बच्चों को, जो कि बच्चे नहीं पसंद करते मोस्ट ऑफ द टाइम, बट या उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत है। अच्छा, अब कोई एज ग्रुप या फिर ऐसा कि इस एज के बाद तो आपको सप्लीमेंट्स पे ज़रूर जाना चाहिए, है ऐसा? या ऐसा है कि 45 to 50 की जो हमारी एडल्ट्स की एज होती है ना, तो ओल्डर वुमेन या मेंस में जो है वो होता है, अगर उनकी डाइट ठीक नहीं है, इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम सम गट हेल्थ, अगर वो कोई उनको पेट का मसला है या कोई तेजाबियत का इशू है, तो उसकी वजह से अगर कोई चीज़ है कि वो नहीं खा सक रहे प्रॉपर्ली, अपनी न्यूट्रिशन नहीं ले सक रहे, तो तब ये है कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। बट वो नहीं कि दैट सप्लीमेंट्स जो कि ज़ीरो कैलोरी और ज़ीरो कैलोरी सप्लीमेंट्स हो। सप्लीमेंट्स भी फिर इस तरह के जैसे कि हमारे पास इंश्योर मिलता है, ग्लूसर्ना मिलता है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क मिलते हैं, वो भी अ काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स ही होते हैं, तो हम वो रिकमेंड करेंगे एज कम्पेयर टू दैट पिल्स जो कि आप खाएंगे और उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट इज टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत सारे लोगों को होती है। अच्छा, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता चल रहा होता कि हम दो सप्लीमेंट्स जो है ना वो कंबाइन करके जब ले रहे होते हैं तो उसमें डबल डोज हमारी जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया कि यू हैव टू टेक मल्टी वाइटामिन्स, तो हमने जो है वो B12 या B विटामिन सारे लेने शुरू कर दिए, और एक जगह हम अपने से ही एक विटामिन की डोज ले रहे हैं जिसमें B विटामिन भी हैं, विटामिन C भी है, तो जब आप वो दोनों इकट्ठे खाएंगे तो वो B विटामिन की ना डोज डबल हो जाएगी। ठीक, लेकिन वो हमें नहीं पता चल रहा होता, फिर टाइम के साथ साथ जो है ना फिर वो आपको। अच्छा मरियम, इसका मतलब है कि आपने इधर उधर से सुन के कोई विटामिन, कोई भी चीज अपनी ग़िज़ा में शामिल नहीं करनी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो कौन सा विटामिन है किसके
साथ वो मैच करेगा, उस अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी उसकी, या फिर किसने किसके साथ सूट नहीं करना। और दूसरा ये भी कि कौन से टाइम पे खाना है। Exactly. तो वो हमें नहीं पता होता, वो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो किस टाइम पे आपने खाना है। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपने सुबह खाली पेट उठ के खाने हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं कि आपने खाने के बाद खाने हैं, कुछ को दूध के साथ लेना है, कुछ को पानी के साथ लेना है, तो इट्स लाइक दैट। तो इसका मतलब है खुद से बिल्कुल आपने ट्राई नहीं करना जब तक आपको डॉक्टर रेकमेंड नहीं करे, और साथ ही साथ जो है वो उसकी टाइमिंग्स और हर चीज उसके हिसाब से लेंगे तो असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने आपको बताया टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा जो कॉमन है, उसमें ये है कि हमें डायरिया हो सकता है या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो सकती है। डिफरेंट हमारे लिवर में जो है वो, क्योंकि ब्लड को जो फिल्टर करना है ना वो हमारे लिवर ने करना है, जिगर ने करना है। तो अगर हम ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो हमारे जिगर में जाके स्टोर भी हो सकते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे चांसेस हैं कि कैंसर प्रोडक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा, हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है कि लगाएंगे तो अच्छा होगा। हम खाने पीने पे वैसे कम फोकस करते हैं कि ये चीज़ें आप ट्राई करके देखें कि इनका असर होता है या नहीं होता, ग़िज़ाएं चेंज करके। कितना वक्त लगता है अगर कोई भी ग़िज़ा किसी भी मकसद के लिए हम ले रहे हैं कि भाई हमें ये चाहिए तो हम इसका ये ले रहे हैं? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैक्सिमम 3 months जो है ना वो हमें चाहिए ही है किसी चीज के इफेक्ट आने में। इतना सब्र किसमें है? हमने तो रात को क्रीम लगानी है, सुबह हमने गोरा उठना है। मैं आपको शुरू में वही बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं कि बस अभी खाया ना तो कल रिजल्ट्स आ जाए। खास तौर पे वेट लॉस का भी ऐसे ही है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमने लूज करना है ना तो विल ट्राई कि बस 1 महीने में मेरा 10 किलो लूज हो जाए। तो वो हम फिर ऐसी क्रैश डाइट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अनहेल्दी है, कोई भी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन ये है कि अगर आप अच्छी चीजें खाएंगे वक्त के साथ साथ आपको उसके इफेक्ट्स इन अ लॉन्ग रन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो 2-3 दिन की जो है वो खुशी से बेहतर है कि जरा लॉन्ग रन में चलते रहें। रेकमेंड किया जा सकता है ऐसे सप्लीमेंट्स को जो कि आपका वेट लॉस करें? I'll tell you, मैं अभी इस पे बात करने ही वाली थी कि जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स है ना, खास तौर पे बहुत ज्यादा मार्केट में वेट लॉस टीज बहुत ज्यादा आम है, सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा आम है। धड़ाधड़ ऑर्डर कर रही हैं, धड़ाधड़, और अच्छी खासी पढ़ी लिखी बाशऊर खवातीन, लड़कियां जिनको समझ बूझ है, फिर भी ऑर्डर कर रही हैं। लेकिन वही कि जो दिखता है वो बिकता भी है। और दूसरी बात ये कि जिसके रिजल्ट्स आपको जल्दी मिले तो वो एक दफा ना दिल फिसल ही जाता है कि शायद मैं ये यूज कर लूं, हो सकता है मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। तो वो हमारे में सब्र नहीं ना, एक पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो वेट लॉस सप्लीमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। आपकी किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, आपके लिवर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उस टाइम तो आपको रिजल्ट्स नजर आ जाते हैं, नो डाउट आपको नजर आ जाएंगे। होता क्या है इन सप्लीमेंट से? यानी ये हमारी बॉडी में जाके क्या ऐसी तबाही मचाते हैं कि हम दिनों में स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स होते हैं ना, वेट लॉस के सप्लीमेंट्स, उनमें ये होता है कि वो आपकी जो फैट एब्जॉर्प्शन है ना बॉडी में उसको रोक देते हैं। उनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, तो आप जितना भी फैट खा रहे हैं वो आपकी बॉडी से पास आउट हो रहा है, वो उसमें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। अब फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे जो 2 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो फैट बेस्ड हैं। विटामिन ए एंड विटामिन डी, ये दोनों फैट बेस्ड हैं। और जब आपका फैट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा, इसका मतलब है कि विटामिन ए और डी भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। यानी इसका मतलब है वो तमाम को वहां पर ब्लॉक कर देता है। यानी जितनी हमें जरूरत है उतना भी हमें नहीं मिल रहा। बिल्कुल। और फिर साथ साथ जो है वो डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है उसकी। फिर आपकी हड्डियों में दर्द, आपकी आंखों में जो है वो आपको कम नजर आना या धुंधलापन होना, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसके सिम्टम्स में आ सकता है। और ये असर होता है किडनीज पे, आप बता रही हैं? बिल्कुल, किडनीज क्योंकि हमारा वाटर फिल्टर करती हैं, तो जितना भी हमारी वाटर में जितनी भी टॉक्सिसिटी होगी वो सारी किडनीज में जाएगी। वहाँ पे किडनियों जो है वो पत्थर बन जाते हैं और किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसके अलावा बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ देखी है कि अगर आप ज़्यादा देर तक ये वेट लॉस सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ओह माय गॉड, वाकई खतरनाक है भाई। प्लीज थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, हेल्दी वे में भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं मोटापे से जान छुड़ाने के लिए। अब कोई भी स्पेशली फीमेल्स ज़्यादा ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं वेट लॉस करने के लिए। अब हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हमारी बॉडी में तबाही हो चुकी है, हमने बहुत सारा अपना सिस्टम ख़राब कर लिया है। ठीक कैसे होगा? आसान होगा या फिर उसके कोई लॉन्ग टर्म भी हमें उसके नुकसान सामने आ सकते हैं जो कि
कंट्रोल नहीं हो सकेंगे फिर? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई सप्लीमेंट की टॉक्सिसिटी होती है ना, तो उसमें सबसे पहले यही रिकमेंड किया जाता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपका ब्लड उतना ज़्यादा थिन होगा और आपकी बॉडी से वो टॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा जो है वो निकलेंगे जल्दी से। बट ये चीज़ भी है कि अगर आपको लॉन्ग रन में देखें तो ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। इसके लिए फिर सर्जरीज होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको डॉक्टर्स के खर्चे और मेडिसिन और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो फिर देखने में सामने आ सकती हैं। तो ये चीज़ भी चले, मोटापा कैसे कम करें फिर? हमने सप्लीमेंट्स पे बिल्कुल नहीं जाना भाई, ख़वातीन को मेरा भी यही मशवरा है, प्लीज़ अपने साथ ज्यादती मत करें और क्या करें ये बता दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप सब कुछ खाएं लेकिन क्वांटिटी बस थोड़ी कम करते हैं। ठीक है। आपका वेट लॉस आप देखेंगे कि वो महीनों में आपका वजन कम खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, आप एक रोटी खाते हैं, कोशिश करें कि उसमें से क्वार्टर कम करें। क्वार्टर एक हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए आपने कम कर दी, उसके बाद आप उसको आधी रोटी पे ले जाएं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप शाम को जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ आती है? रोटी आती है, चावल आते हैं, ब्रेड्स आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये शाम के टाइम ना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रात को खाएंगे ना वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड रहेगा और फिर रात को वो फैट में कन्वर्ट होकर आपका जो है ना वो वेट गेन करेगा। बारबेक्यूज इस तरफ के चले जाएं। हाँ, ये चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है चिकन जो है ना। तो ये चीज़ है कि घर में जो भी बना है ना, खास तौर पे दालें बहुत अच्छी होती हैं, दालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो आप वो खाएं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। चम्मच के साथ सालन खा लें और रोटी को अवॉइड करें शाम के टाइम मोस्ट। और ज्यादातर ना अपने जितना भी खाना खा रहे हैं, जैसे दोपहर का खाना है या रात का खाना है, तो उसमें साथ में सैलेड लाजमी लें। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ख़वातीन वेट लॉस कर रही हैं, डाइट भी कर रही हैं, कंट्रोल भी कर रही हैं, कम भी खा रही हैं, अब उनका वेट वहीं पे स्टक है, वो इंचेस में कम हो रही हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, इंचेस में कम होना या फिर वेट लॉस होना? सबसे जो है ना वो जो हमें नज़र आता है ना वो हमें उससे खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि जो इंचेस में वेट कम हो रहा है ना, तो वो आपका सबसे, आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन है कि आपका इंचेस में वेट कम हो रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा है कि हम जब वेट स्केल पे खड़े होते हैं ना तो आपका वेट जो है वो 60 आया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने थोड़ा बहुत कुछ खाया है, आपने पानी पिया है, थोड़ा बहुत खाना खाया, आप वेट स्केल पे चढ़ेंगे, आपका वेट आएगा 62। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे में ही आपका 2 किलो वजन ज्यादा हो गया है। तो अगर आपका वेट जो है वो स्केल के ऊपर ज्यादा या कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई वाटर रिटेंशन हो सकती है या कुछ। लेकिन इंचेस में जो कम हो रहा है ना तो उसका मतलब है कि आपका फैट ही कम हो रहा है, आपका जो है वो वाटर लॉस नहीं हो रहा। तो एक ये भी चीज है कि अगर इंचेस में कम हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू। इसका मतलब हैप्पी रहें कि अगर आप शीशा देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज मेरा फेस, बड़ी ख़वातीन को परेशानी होती है कि फेस बड़ा हो गया, चीक्स निकल आई, इनको छोटा करना है, अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई कम हो रहे हैं या इंचेस में कम, आपको खुद फील हो जाता है, तो फिर वेट मशीन पे हर रोज सुबह शाम जो है ना वो वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं वाकई मेहनत कर रही हूँ तो मुझ पे लग रही है, तो बस उसी पे इक्तफा कीजिए। और ये जो सुबह शाम वेट मशीन